Okay, see, Dream India Limited furnishes the following information from which you are required to allocate the joint cost using which method? Average unit cost method. Now, first method he is asking. Average unit cost method. So, what was the formula? Total joint cost divided by number of units. This was the formula. But we need to calculate joint cost. We need to calculate cost of each product. Cost means in terms of rupees, in terms of amount. Okay, so how we will do it? I will tell you. See, first of all, joint cost is given 30,000. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So what is total joint cost? 30,000. Our total joint cost is 30,000. Now 30,000 is given already joint cost. There are total how many units produced? Number of units 2000. manufactured is? Yes. Total number of units manufactured 2000. Now out of these 2000 number of units, there are three different joint products manufactured. Units manufactured product A 1000, B product B 300, product C 700. How many in all? 1300 and 700. How many in all? 2000. 2000. Yes, so 2000 is total number of units. And if you segregate in each of the parts, then product A is 1000, product B is 300, product C is 700. So simple. Now, by using average unit cost method, you need to calculate the cost of each of the products. टोटल खर्चा दिया हुआ है आपको 30, पर 30 में से ए का खर्चा कितना, बी का खर्चा कितना, सी का खर्चा कितना इज नॉट गिवन in the question. That we have to calculate. So how we will be calculating? By using average unit cost method. That means first we need to calculate per unit by using the formula of average CPU. Unit cost means CPU, cost per unit. Now we need to calculate average unit cost per unit. So what is the formula of average unit cost per unit? Total joint cost divided by number of units. So first we will calculate per unit. Per unit, CPU, cost per unit. So the formula is total joint cost divided by number of units. That means what is total joint cost? What is total joint cost? 30,000. 30,000. Very good. 30,000. 30,000. Very good. And how many number of units are produced? How many units are 2000. 2000. 2000. Very good. Total. Always remember, whenever we calculate average, so we have to calculate according to the totals of the particular information which is already given to you. So यहाँ पे जो particular information है उसकी joint cost है total 30,000 and total number of units है 2000 मतलब 2000 units. So 30,000 by 2000 is rupees 15 per unit. 15 अब per आपको unit. हाँ जी लॉजिक लगाएंगे अब हम. देखो अब मुझे क्या मिला? एवरेज कॉस्ट पर यूनिट मतलब CPU 15 रुपए CPU मिल गया. मतलब एक यूनिट को बनाने का 15 रुपए. तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे निकालना है प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी का अलग अलग कॉस्ट निकालना है. अलग अलग टोटल तो मुझे दिया हुआ है 30,000 रुपए 30,000 पर अलग अलग नहीं दिया हुआ है. तो अलग अलग के लिए मैंने अभी क्या निकाल दिया? CPU निकाल दिया 15 रुपए. 15 रुपए एक यूनिट का खर्चा. तो प्रोडक्ट ए के कितने यूनिट्स हम बना रहे हैं? 1000. वेरी गुड. दिस इज द पॉइंट दैट यू हैव पिक्ड अप करेक्टली. 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, उसमें से एक प्रोडक्ट का खर्चा 15, तो 1000 का कितना? 15,000 रुपए. 15,000. नीचे देखो टेबल में उन्होंने किया. मैं नॉर्मली करवाती हूँ, टेबल नहीं बनवाती हूँ. आप टेबल के फॉर्म में भी कर सकते हैं. देखो प्रोडक्ट ABC. अच्छा प्रोडक्ट की यूनिट्स कितने हैं? ए के 1000, बी का 300, सी का 700. ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है. उन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 15 पर यूनिट, 15 पर यूनिट एंड सो ऑन. मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट प्रोडक्ट का कॉस्ट मिलेगा 15,000. सेकंड का मिलेगा 300 इंटू 15 दैट इज 4,500 एंड सी का मिलेगा 700 इंटू 15 दैट इज 10,500. अब आपको पता कैसे लगे कि हमारा ये सम राइट है कि रॉन्ग है? खुद ही पता लग सकता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं. तीनों कॉस्ट को प्लस कर दो ना. तीनों कॉस्ट को प्लस करके देखो. अगर प्लस करने से जॉइंट कॉस्ट के साथ मैच होता है मतलब हमारा सम करेक्ट है.
सो तीनों खर्चों को ऐड करने के बाद 30,000 आया, और वाकई में हमारी जॉइंट कॉस्ट कितनी थी 30, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स को ऐड करने से 2000 आना चाहिए जो दिया हुआ है यहाँ पर। मतलब 20,000 यूनिट्स बनाने का खर्चा 30 था, ये ऑलरेडी दिया हुआ था। अब 30 को मुझे डिवाइड करना है एबीसी में। कौन सा मेथड यूज करके? एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, मतलब सीपीयू के हेल्प से। तो सीपीयू निकालने की फॉर्मूला तो आपको पता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। हम कॉस्ट शीट करते थे, कॉस्ट शीट सबको याद है? कॉस्ट शीट। Yes, ma'am. अब मुझे रॉ मटेरियल का, लेबर का, एक्सपेंसेस का, फैक्ट्री ओवरहेड्स का, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का सीपीयू निकालना था। तो मैं क्या कर रही थी, मैं आपको बोल रही थी ना, फैक्ट्री ओवरहेड्स का पहले टोटल करिए, टोटल करने के बाद उसको डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ यूनिट से, तो सीपीयू मिल जाएगा। तो बस वही फॉर्मूला है, अमाउंट डिवाइडेड बाय सीपीयू, सॉरी अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो आपको मिल जाएगा सीपीयू। अभी भी हम वही कर रहे हैं, अमाउंट मतलब जॉइंट कॉस्ट, टोटल जॉइंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, अभी भी हम सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं सीपीयू की। चलो शुरू करो, सॉल्यूशन करो। मैं आपको कैसे करना है वो आप देख लो, ये टेब्यूलर फॉर्म में भी कर सकते हो और विदाउट टेबल बनाकर भी हम कर सकते हैं। सिंपली लिख सकते हैं प्रोडक्ट ए इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 15,000। नीचे प्रोडक्ट बी इज इक्वल्स टू 300 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 4,500। समझ में आया कैसे बोल रही हूँ मैं? करके बताऊं कि ऐसा सेम कर लोगे? सॉल्यूशन यहाँ पे ही है, ऐसा मैं भी ऐसे ही करूंगी। हाँ मैम, ऐसे ही कर हाँ लेंगे मैम, हम हम लोग देख के हाँ करेंगे। हाँ हाँ करो, कुछ डाउट हो तो पूछो। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस टू नोट डाउन फॉर 2 minutes। ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर 2 minutes। जल्दी कॉपी डाउन करो, और कुछ नहीं समझ में आए तो पूछो। आई एम राइट हियर ओनली। हैव यू स्टार्टेड? Yes, यस ma'am. मैम। या 2 minutes। हाँ मैम हुआ ना? ठीक है, अभी स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अभी है ना, एक Yes, काम ma'am. करते हैं, okay, so let us begin with next question। ये मिनिमाइज क्यों नहीं हो रहा? ये ना इतना सिंपल चैप्टर है ना कि उन्होंने सिर्फ एक एक मेथड का एक एक क्वेश्चन दिया हुआ है। देखते हैं अनसॉल्व्ड में है कि नहीं है। Yes, we have. So you're going to do it. Okay. Now see, Horizon Limited unsolved problem number 1. Average unit cost method. Horizon Limited furnishes the Right now, following. ma'am. Sorry. Right now. Yes, yes, yes. अभी करेंगे अभी. Horizon Limited furnishes the following information from which you are required to allocate the joint. Allocate the joint cost means separately निकालने का बोल रहे हैं. By using average unit cost method. Total joint cost is 50,000. Number of units 5,000. प्रोडक्ट पी के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए थे? 1500, क्यू के 2500 और आर के 1000। आप तीनों को प्लस करेंगे ना तो 5000 दिखेगा आपको। 5000 यूनिट्स को ही डिवाइड करके बताया है उन्होंने। तो चलो बोलो स्टेप, इसमें हम 2 कर स्टेप्स लेंगे। होते। हाँ करिए। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है? Average cost per unit is वेरी गुड, equal to वेरी गुड। नंबर total of joint cost divide by number of नंबर ऑफ units. यूनिट्स, वेरी गुड। करो इतना और मुझे आंसर बताओ। लिखो लिखो, मैं सिर्फ आपने जो बताया है वो मैं रिपीट कर रही हूँ। लिखो, सबसे पहला हमको निकालना है एवरेज सीपीयू, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। उसकी फॉर्मूला लिखेंगे टोटल कॉस्ट, टोटल जॉइंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। बताओ मुझे टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी है आपकी? 50,000. वेरी गुड। 50,000। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है आपकी? 5,000. 5,000। 5000।
So 50,000 divided by 5,000. So how much 10, is your 10. yes, very Rupees good. 10,000 per unit. ना शिवानी 10,000 किधर से आ गया बच्चा? 10 मैम, सॉरी 10 मैम. per unit. 10 आया, वेरी 10 गुड. 10 per 10 unit. per रुपीस, unit. तो आप कैसे लिखोगे इसको? रुपीस 10 पर यूनिट. Per ठीक है, unit. ये Yes हो गया, ma'am. ये समझ लिया. Yes अब ma'am. हमको नेक्स्ट लाइन पे आपको कैलकुलेट करना है जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन. मतलब हम लिखेंगे जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन. अब करेंगे प्रोडक्ट पी, प्रोडक्ट क्यू, प्रोडक्ट आर. एक एक लाइन पे करना है. हाँ, प्रोडक्ट पी. कोई बताएगा प्रोडक्ट पी के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं? 1,500. 1500. उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से 10 10 वेरी per से. गुड. unit. अभी जो हमने सीपीयू निकाला. वेरी गुड. सो 1500 इंटू 10 इज इक्वल्स टू हाउ मच? 15,000. 15,000. मतलब देखो मेरी बात सुनो. आपकी जॉइंट कॉस्ट थी 50,000 रुपए. 50,000 में से प्रोडक्ट पी का कितना खर्चा था? 15,000 रुपए. क्या आपको समझ में आया लॉजिक अभी? Yes Yes ma'am. ma'am. हाँ, ऐसे ही सेम करो प्रोडक्ट क्यू का. कोई मुझे बताएगा किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 10 2,500 10 को 10 से करना मल्टीप्लाई है. करेंगे तो Very good. 25,000 आएगा. 25,000 आया. 2,500 यूनिट्स प्रोडक्ट क्यू के बनाए हैं. उसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10 पर यूनिट. अगर एक यूनिट का 10 रुपए तो 2,500 का कितना? 25,000. 25,000. वेरी गुड. Yes ma'am. 25,000 क्या? रुपीस. ये जो हम Rupees. कैलकुलेट, हाँ, पर यूनिट मत लिख देना पीछे. 25,000 टोटल वैल्यू है. टोटल वैल्यू में कभी भी पर यूनिट नहीं लिखते हैं. इट इज रुपीज Total cost. 25,000. यस, टोटल कॉस्ट. वेरी गुड. लेकिन प्रोडक्ट क्यू की ऐसा ही सेम कैलकुलेट करो. प्रोडक्ट आर के लिए कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए हैं? 10,000 into 10. 10,000 into 10. 10,000. वेरी 10,000. गुड. वेरी गुड. गुड. Is equal to 1,000 into 10,000. 10 is 10,000. अब तीनों को 10,000. टोटल करो. तीनों खर्चों को total 50,000. 50,000. 50,000 ma'am. अच्छा, तीनों नंबर ऑफ यूनिट्स को भी टोटल करो. 5,000. 5,000. तो मतलब हमारा सम राइट है. Correct है. ठीक है ना? हाँ मैम. सबको समझ में आया? सिंपल है. यस Yes मैम. ma'am. Yes, Yes ma'am. ma'am. ठीक है, अभी हम करेंगे फिजिकल यूनिट कॉस्ट मेथड. हम करेंगे हाँ. फिजिकल यूनिट कॉस्ट मेथड, मतलब जो हमारा सेकेंड मेथड है. यहाँ पे कौन से, यहाँ पे कितना दिया हुआ है एक मिनट मुझे देखने दो. ये तो हमारा पहला सम था, ये हो गया. ओके. ठीक है. अभी यहाँ ये क्वेश्चन विजिबल है कि थोड़ा और बड़ा करूँ? मतलब स्क्रीन बड़ा करूँ, जूम करूँ? है visible ma'am. है ना? हाँ, विजिबल मैम, है है. ना? ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सपना लिमिटेड furnishes the following information from which you are required to allocate the joint cost. allocate मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग अलग करके देना. and also calculate cost per unit using which method? physical unit cost method. physical unit का मतलब होता है रॉ मटेरियल. ठीक है. अब प्रोडक्ट ए बी सी, 3 प्रोडक्ट्स बन के निकले. अच्छा सॉरी, एक लाइन रह गई मेरी. जॉइंट कॉस्ट 40,000. क्या आपको दिख रहा है स्क्रीन पर जॉइंट कॉस्ट 40,000? Yes ma'am. Yes हाँ, ma'am. ये देखो यहाँ पे मेरे कर्सर को देखो. आपको जॉइंट कॉस्ट हमेशा मिली हुई रहेगी, नहीं तो काम कैसे बनेगा? अगर जॉइंट कॉस्ट ही नहीं मिली हुई रहेगी तो उसको आप बाइफरकेट कैसे करोगे? एलोकेट कैसे करोगे? इसी 40,000 को तो मुझे एलोकेट करना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है. अच्छा, प्रोडक्ट ए बी सी 3 प्रोडक्ट्स हैं. तीनों को मैंने रॉ मटेरियल के टर्म्स में डिवाइड कर दिया. प्रोडक्ट ए में कितना रॉ मटेरियल लग रहा है? 4. रॉ मटेरियल मतलब नंबर ऑफ 4,000. यूनिट्स. हमेशा याद 4,000. रखो, रॉ मटेरियल मतलब यूनिट्स में तोला जाता है रॉ मटेरियल को. तो प्रोडक्ट ए में कितना रॉ मटेरियल लग रहा है? 4,000. प्रोडक्ट बी में कितना रॉ मटेरियल लग रहा है? 8,000. और प्रोडक्ट 8,000. सी में? 8,000. 8,000. अच्छा, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप बना रहे हो? प्रोडक्ट ए के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बना रहे हैं हम? 1,000. प्रोडक्ट बी के 400. और प्रोडक्ट सी 600. म्यूट प्लीज, एवरीबॉडी म्यूट प्लीज. बोल के म्यूट कर लीजिए. ठीक है, चलो अभी देखो मुझे पर यहाँ पे कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बना रहे हैं वो बाद में काम आएगा.
पर पहले मैं रॉ मटेरियल के बेसिस पर मुझे रेशियो निकालना है, जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड करना है। अच्छा, पहले तो मुझे जॉइंट कॉस्ट निकालनी है, ऊपर से उन्होंने ये भी बोला है एंड ऑल्सो कैलकुलेट सीपीयू, कॉस्ट पर यूनिट दिख रहा है ये अंडरलाइन किया हुआ। यस मैम। हाँ, मतलब मुझे मैम अभी दो चीजें निकालनी है इसमें। यू आर रिक्वायर्ड टू एलोकेट द जॉइंट कॉस्ट। पहले तो जॉइंट कॉस्ट को अलग 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 कर दो। ये जो 40,000 की जॉइंट कॉस्ट है, इसका ए का कितना, बी का कितना, सी का कितना, पहले तो अलग अलग करो। और उसके साथ साथ एक और चीज कैलकुलेट करके दो मुझे, सी पी यू यूजिंग। ये दोनों चीजें मुझे कौन से मेथड से निकालनी है? फिजिकल यूनिट कॉस्ट मेथड, मतलब रॉ मटेरियल के नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पे। बहुत सिंपल है, आप खुद देखोगे एक टेबल में सॉल्यूशन खत्म। कितना इजी है, आप देखो। सबसे पहले बेस क्या लेना है? रॉ मटेरियल। तो पहले रॉ मटेरियल को उठा लो, सबसे पहला स्टेप रॉ मटेरियल क्वांटिटी में। अच्छा, ए का कितना, 4 कॉलम्स बनाएंगे, पर्टिकुलर्स ए बी सी। टोटल बनाने की मुझे जरूरत नहीं है, पेपर में टाइम नहीं है। टोटल का कॉलम नहीं बनाओगे चलेगा, बनाओगे तो भी चलेगा। इज इट ओके विथ एवरीबडी? Yes, ma'am. यस मैम। Yeah, just hold on for a minute, okay? So raw material used in quantity. ए का कितना है ऑलरेडी गिवन, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करने का। ए का कितना बोलो? 4,000. वेरी गुड। बी का कितना? 8,000। सी का कितना? 8,000. 8,000। बस यहाँ पे 8,000. वर्टिकली लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन में हॉरिजॉन्टल कॉलम्स बनाने हैं, हॉरिजॉन्टली लिखना है, कॉलम्स बनाने मतलब। तो पर्टिकुलर्स कॉलम, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम। तो रॉ मटेरियल में ए में लिखोगे 4,000, बी में लिखोगे 8,000, सी में लिखोगे 8,000। अभी देखो 3 जीरोस कॉमनली कैंसिल हो गए, 3 जीरो कट, 3 जीरो कट, 3 जीरो कट। आपको करना नहीं है कट, अगर आपको चाहिए तो नीचे वर्किंग नोट बनाओ, नीचे अलग से 4,000:4,000:4,000। 3 जीरो पेंसिल से कट करने का, फिर 4:8:8 बचेगा। सबको समझ आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ, 4:8:8 बचेगा, तो उसको 2 की टेबल लगा के छोटा करेंगे नंबर को। 4 की टेबल लगा के भी कर सकते, 4 1 जा, 4 2 जा, 4 2 जा। नहीं समझ में आ रहा है? स्क्रीन पे सिखाऊं? समझ रहा है मैम, समझ रहा है। पक्का सब नहीं बोल रहे हैं? Yes, ma'am. समझा मैम। एक बार दिखा देती हूँ, देखो। आपने ना वर्किंग नोट बनाना है, ठीक है? आप यहाँ लिखोगे 4,000:8,000:8,000, ठीक है? नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, 3 जीरो कॉमन कैंसिल हो गए, तो क्या बचेगा? 4:8:8 बचेगा। नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, 4 की टेबल लगाएंगे, 4 1 जा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। मतलब रेशियो क्या बन गया? इसको और कट कर सकते क्या, छोटा कर सकते क्या? नहीं मैम, नहीं, नहीं 1 इज होगा। नहीं, 1 का कुछ नहीं हो सकता है ना। वैसे 2 to 2 होता तो 1 1 1 आ सकता था, बट अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो अब मुझे रेशियो मिल गया 1:2:2। देखो यहाँ पर भी उन्होंने लिखा है 1:2:2, मतलब मेरा सेकंड स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप रॉ मटेरियल की क्वांटिटी लिख देना। अब क्वांटिटी के मदद से मैंने रेशियो निकाला, क्वांटिटी के मदद से मैंने रेशियो निकाला, तो मेरा सेकंड स्टेप है रेशियो बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल यूनिट्स, बेस्ड ऑन यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, रेशियो क्या निकला बोलो? 1:2:2। अच्छा, टोटल तो 5 ही होगा, कॉमन सेंस। 2 + 2 4, 4 + 1 5। अब मुझे बहुत इजी हो गया, देखो रेशियो मिल गया ना। अब 1:2:2। टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी है? 40,000। सारे बताओ टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी है? 40,000. बस यही तो करना 40,000. है, आप कैलसी पे डालना है 40,000। इसी 40,000 को मुझे कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? 1:2:2 में डिवाइड करना है। इसी रेशियो को मुझे डिवाइड करना है 1:2:2 में। आया समझ में सबको? और इसको हम Yes, शॉर्टकट ma'am. मेथड से कर सकते हैं, कैलसी पे मैंने आपको सिखाया है। देखो 1:2:2 का टोटल कितना होता है? 5 होता है, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. हाँ, तो अब कैलसी में डालो 40,000 इंटू 5, सॉरी 40,000 डिवाइड बाय 5 इंटू, 1। हाँ रुको ना, 40,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू,
डिवाइड बाय 5 इंटू, अभी करते जाओ, 1 इज इक्वल्स टू, बोलो आंसर बोलो, 1 इज इक्वल्स टू का आंसर बोलो। 8000। वेरी गुड। अभी कुछ नहीं करना कैल्सी में, 8000 जो दिख रहा है ना उसको रहने दो, कुछ मत करो, अभी सीधा डालो 2 इज इक्वल्स टू, ये शॉर्टकट मेथड है कैल्सी का। 16. वेरी गुड। 16,000. अब वापस क्या चाहिए, फिर से 2 चाहिए, 1:2:2, तो वापस 2 इज इक्वल्स टू करो कैल्सी में, सेम आएगा 16,000। 16,000 same. हाँ, तो देखो ये वाली फॉर्मूला लगानी कैल्सी में, मैंने स्क्रीन पे हाईलाइट किया हुआ है। 40,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू, जो जो आंसर आते जा रहे हैं ना वो लिखते जाओ कॉलम्स में। 1 का आया 8,000, 2 का आया 16,000, 2 का आया 16,000। अब तीनों को टोटल करके देखो, 16 + 8 क्या 40 आ रहा है, 40,000 आ रहा है? Yes ma'am, आ तो रहा है, मतलब हमने राइट किया है कि रॉन्ग किया है? राइट किया है। बिल्कुल बराबर किया है, क्योंकि हमारा टोटल मैच होना चाहिए आंसर निकलने के बाद, मतलब जो भी मेथड हम लगा रहे हैं उसका आंसर टोटल से मैच होना चाहिए, टोटल से मैच करना चाहिए हमारे सारे आंसर्स को प्लस करने के बाद। अच्छा, यहाँ तक हमारा सम खत्म तो नहीं हो रहा, क्योंकि उसने कहा था जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट कर दो, हमने कर दिया। जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करने के बाद सीपीयू भी निकालना है, बहुत सिंपल है। हमने कॉस्ट शीट सीखी है, उसमें हम सीपीयू कैसे निकालते थे, कोई फॉर्मूला बताएगा सीपीयू की? अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। सीपीयू की फॉर्मूला क्या होती है, हमेशा याद रखो, सीपीयू निकालने की फॉर्मूला होती है अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब प्रोडक्ट ए का देखो, प्रोडक्ट ए को, इसका जॉइंट कॉस्ट अभी अभी हमने अलग से निकाला, ए का कॉस्ट कितना है, ए का कॉस्ट कितना है? 8,000। वेरी गुड। और ए के नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बनाए हैं? 1,000 यूनिट। वेरी गुड, यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो क्वेश्चन में 1000 यूनिट्स, बी के 400, सी के 600, ये नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। कुछ नहीं करना, जो अभी जॉइंट कॉस्ट निकाली ना उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ यूनिट से, तो आपको मिल जाएगा सीपीयू। तो मतलब मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, लिखो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 1000, 400, 600, 1000, 400, 600। अब क्या करना है मुझे, जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड करना है नंबर ऑफ यूनिट से, तो मिलेगा सीपीयू। लास्ट में लिखोगे आप सीपीयू इज इक्वल्स टू, लिखो जैसे आपको सॉल्यूशन में दिख रहा है, सीपीयू इज इक्वल्स टू जॉइंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, जॉइंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। बोलो ए का जॉइंट कॉस्ट कितना, ए का कॉस्ट, वैसे तो टोटल जॉइंट कॉस्ट 40,000 है, पर मुझे ए का कॉस्ट कितना मिला अभी अभी 40 में से 8,000। Very good. 8,000। तो 8000 को किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स 1000 प्रोड्यूस्ड। यूनिट। 1,000। सो 8000 बाय 1000 कितना हो जाएगा, 8 पर यूनिट, 8 पर यूनिट, हाँ 8 पर यूनिट। अच्छा नेक्स्ट बी का कॉस्ट कितना है, 16,000. डिवाइडेड बाय बी का नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, 440. 400. 40. वेरी गुड, 40 इज द आंसर, रुपीज 40 पर यूनिट। अच्छा लास्ट सी का टोटल खर्चा कितना था, 16,000. डिवाइडेड बाय सी का नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, 600. सो आपका कितना हो जाएगा सीपीयू, 26.67. 6.67. वेरी गुड वेरी गुड। आया समझ में, देखो कितना इजी है, कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए कि सीपीयू कैसे निकालते हैं, और अगर सीपीयू दिया हुआ जाए तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, बस वही है। सबको समझा अभी कि नहीं? हाँ Yes मैम। ma'am. समझा मैम। ठीक है, अभी हम इसी फिजिकल यूनिट कॉस्ट मेथड का दूसरा सम करेंगे। मैम अभी करेंगे? हाँ हाँ हाँ, अभी 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 करके फिर हम क्लोज करते हैं, डोंट वरी। मैम कल करते ना। बच्चा 5 मिनट लगेगा ना, फिर फिजिकल यूनिट कॉस्ट मेथड उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कल। मैम फ्राइडे है ना तो बहुत लेट हो रहा है। फ्राइडे को क्या होता है आपका, स्पेशल कुछ काम आज होता है? प्रेयर्स है ना हम लोग का। हाँ मैम ओहो, प्रेयर्स है ना तो बहुत लेट अच्छा, हो रहा है। बस 5 मिनट दे ऑलरेडी दो, 2 बज चुका है। सिर्फ 5 मिनट दे दो बच्चा, फिजिकल यूनिट कॉस्ट मेथड का एक सम अच्छा कर ओके लेते हैं, मैम। 5 मिनट्स लगेंगे सिर्फ। ओके मैम। हाँ फटाफट ओके करते मैम। हैं, ठीक है।
यहाँ पे देखो अभी, ये देखो, ये दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है सबको सेकंड क्वेश्चन का? हाँ देखो, दिख रहा है हाँ, मैम। Yes. हाँ Vision मैम। 2020 India Limited furnishes the following information from which you are required to allocate the joint cost and determine CPU as per unit cost method, physical unit cost method, जिसमें joint cost है 80,000, 3 प्रोडक्ट्स है XYZ, रॉ मटेरियल की क्वांटिटी दी हुई है, यूनिट्स प्रोड्यूस दी हुई है। चलो फटाफट स्टार्ट करो, टेबल बनाओ। कितने कॉलम्स बनेंगे? पर्टिकुलर्स, कॉलम X, कॉलम Y, कॉलम Z, तो कितने कॉलम्स हुए? 4 columns, 4 4 columns. कॉलम्स। वेरी गुड। चलो जल्दी स्टार्ट करो, लाइंस आप बाद में ड्रॉ कर देना, ठीक है ना? चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रॉ मटेरियल बताओ, ब्रैकेट में लिखो क्वांटिटी मतलब यूनिट्स। बोलो एक्स का कितना रॉ मटेरियल है? 5,000. आप हॉरिजॉन्टली लिखोगे, हाँ, एक्स के नीचे 5,000, वाई के नीचे 3,000, जेड के नीचे 2,000, 5 3 2। अच्छा, तो कॉमन कैंसिलेशन 0 0 कट जाएगा, तो रेशियो कितना निकलेगा? लिखो 5 नेक्स्ट 3 लाइन 2. पे, पर्टिकुलर्स की नेक्स्ट 5 लाइन पे आ 3 जाओ। 2। वेरी गुड। पर्टिकुलर्स की नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, लिखो रेशियो बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल इन यूनिट्स, रेशियो बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल इन यूनिट्स। तो रेशियो बन जाएगा 5:3:2। अतिफा क्लियर हो रहा है? अतिफा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ बच्चा, 5 मिनट्स फिर हम एंड करेंगे, ठीक है? 5:3 Okay, ma'am. is to 2। अब मुझे बताओ, 5:3 is to 2 तो आपको रेशियो मिल गया, तो जॉइंट कॉस्ट कितनी थी आपकी? जॉइंट कॉस्ट 80,000. 80,000। 80,000. 5:3:2 का टोटल कितना होता है? 5 + 3 + 2। 10. हाँ, तो कैलसी में कैसे करोगे? शॉर्टकट मेथड, 80,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू, बोलो इंटू करने के बाद कौन सा नंबर प्रेस करेंगे? Into 5. वेरी गुड। 5 Into इज 5. इक्वल्स टू, तो बोलो, और नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे, रेशियो के नीचे लिखेंगे जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन। चाहिए तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं। 80,000 को मैंने 5:3:2 में डिवाइड किया, तो 80,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 5 इज इक्वल्स टू, बोलो पहला आंसर क्या आएगा एक्स का? 40,000. 40,000। अच्छा, 3 इज इक्वल्स टू, वाई का आंसर 3 इज इक्वल्स टू, 24,000. सॉरी 24,000. 24। अच्छा, 24,000. और अभी z का होगा 2 इज इक्वल्स टू, z का आंसर 16,000. वेरी गुड। पहला आया 40,000, फिर 24, फिर 16, तीनों को टोटल करो, देखो 80,000 आ रहा है, जॉइंट कॉस्ट से मैच हो रहा है, आ रहा है मैम. मतलब राइट है। किस किस का यहाँ तक हो गया? मैम हो गया सबका। हो गया मैम। वेरी गुड। इधर यू कैन रेज योर हैंड, आई विल अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, चलो हो गया ना। सो अभी हमको सीपीयू निकालना है, तो जॉइंट कॉस्ट जो अभी आपने निकाली उसके नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। बताओ एक्स के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए हैं आपने? क्वेश्चन में दिया हुआ है। 4,000. वेरी गुड, 4,000। वाई के कितने बनाए हैं? 3,000. वेरी गुड। जेड के कितने बनाए हैं? 2,000. वेरी गुड। अभी लास्ट स्टेप आपका है सीपीयू। लिखो नेक्स्ट लाइन पे, लिखो सीपीयू इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला उधर ही पर्टिकुलर्स में, सीपीयू इज इक्वल्स टू जॉइंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय, मतलब जॉइंट कॉस्ट एक एक की, हाँ, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन करके आप लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो अब पहले की जॉइंट कॉस्ट कितनी थी एक्स की? 40,000 20,000. डिवाइडेड बाय 4,000 नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तो यूनिट कॉस्ट कितना हो जाएगा? सीपीयू 10. कितना? 10। 10. ठीक है। नेक्स्ट वाई, वाई का था आपका 24,000 जितना मुझे याद है। 24,000 को 3,000 से डिवाइड करोगे, यूनिट्स प्रोड्यूस है 8. 3,000, 8। अच्छा, और जेड को 16,000 डिवाइड बाय 2,000, 8. 8. 8. वेरी गुड। सो 10 8 8 इज योर फाइनल आंसर। आया सबको समझ Yes, में? ma'am. Yes, Yes ma'am. ma'am. ओके, तो बाकी हम लोग कल
कंप्लीट करेंगे, मतलब कल मैं थोड़ा स्ट्रेच करके कैसे भी करके ये चैप्टर कंप्लीट करूंगी. सो फॉर टुमारो यू हैव टू बी रेडी. ठीक है? Yes, मतलब ma'am. जो टाइम हमने Yes, ma'am. हम डिसाइड करके रखने वाले हैं, तो आप रेडी रहना कि अगर मुझे एक्सटेंड करने की नीड पड़ी तो मैं एक्सटेंड करके भी खत्म करूंगी ये चैप्टर. ठीक है? 2 मेथड्स आज हमने कर लिए, एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, फिजिकल यूनिट कॉस्ट मेथड. बाकी बच्चे आपके 4 मेथड्स, ठीक है, वो हम लोग कल लेक्चर में मिलके खत्म करेंगे. Okay, ठीक ma'am. है? Is that Okay, okay ma'am. with everyone? Okay, ma'am. Bye. Yes, ma'am. Take care, everybody. Bye. See you tomorrow, and all the best for tomorrow's exam. Yes, ma'am. Bye. Bye. Do your best. Thank Bye. you, ma'am. Yeah.